માત્ર ભારત જ નહીં પરંતુ દુનિયામાં જ્યાં પણ સનાતની વ્યક્તિ રહે છે, સનાતની પરિવાર રહે છે, તેના માટે ગર્વની ઘડી હવે આવી રહી છે। 22 જાન્યુઆરી ભગવાન શ્રીરામ પોતાની જ જન્મભૂમિમાં જન્મ સ્થળ ઉપર મંદિરમાં બિરાજમાન થશે। એ ભવ્ય દિવ્ય મંદિરનું નિર્માણ પૂર્ણતાને આરે છે અને માત્ર મંદિરનું નિર્માણ જ થઈ રહ્યું છે એટલું નહીં, ભગવાન રામની જન્મભૂમિ અયોધ્યાના દિવ્યતાના હવે દર્શન થઈ રહ્યા છે। અયોધ્યા વિકસિત થઈ રહ્યું છે। આજની જ વાત કરીએ તો 15,700 કરોડ રૂપિયાની 46 વિકાસ યોજનાઓનું શિલાન્યાસ પણ થયું અને ઉદ્ઘાટન થયું। એટલું જ નહીં, પ્રધાનમંત્રીએ અહીંયા આધુનિક રેલવે સ્ટેશન, તે પણ મંદિરની તર્જ પર બનેલું રેલવે સ્ટેશન અને એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન પણ કર્યું। એટલે કે હવે ભગવાન શ્રીરામના દર્શન હવાઈ માર્ગે પહોંચીને પણ કરી શકાશે। આજે પ્રધાનમંત્રી અયોધ્યામાં હતા। અયોધ્યાની અંદર આજે પણ દિવાળી જેવો માહોલ હતો। જો કે અયોધ્યા સહિત દેશભરમાં એ દિવસથી દિવાળી જેવો માહોલ બનેલો જે દિવસે સુપ્રીમ કોર્ટે ભગવાનના જન્મસ્થળ ઉપર રામ મંદિર બનાવવાની અનુમતિ આપી અને રામ મંદિર માટેનો શિલાન્યાસ થયો। એક ગુજરાતી તરીકે ગર્વની વાત એટલે છે આપણા માટે કે રામ જન્મભૂમિનું આંદોલન પણ આપણા ગુજરાતથી શરૂ થયું હતું। એટલું જ નહીં, રામ જન્મભૂમિ ઉપર જે મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે તે મંદિરની ડિઝાઇન પણ આપણા ગુજરાતના સોમપુરા પરિવારે તૈયાર કરી છે અને એ જ પ્રમાણે મંદિર તૈયાર થઈ રહ્યું છે। આ એ સોમપુરા પરિવાર છે જેને સોમનાથના મંદિરનું પણ નિર્માણ કર્યું, એની પણ ડિઝાઇન કરી એ શિલ્પકાર પરિવાર છે। અયોધ્યાની શકલ સુરત બદલાઈ ચૂકી છે। આજે પ્રધાનમંત્રીનો જબરજસ્ત રોડ શો થયો। પ્રધાનમંત્રીએ ચોક્કસથી એ તમામને કહ્યું છે કે 22 જાન્યુઆરીએ શક્ય હોય ત્યાં સુધી ન આવતા, વ્યવસ્થા સચવાય તેનું ધ્યાન રાખજો, પણ ત્યારબાદ ચોક્કસથી આ મંદિરના દર્શન કરવા આવજો, એ દિવ્યતાની અનુભૂતિ કરવા આવજો। મને જે જાણકારી મળી છે એ પ્રકારે ગર્ભગૃહમાં ભગવાનની જે મૂર્તિનું સ્થાપન થવાનું છે અને જ્યાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાવાનો છે એ મૂર્તિની ભગવાનની આંખ એ પ્રકારે રાખવામાં આવી છે કે કોઈ પણ દર્શનાર્થી જાય તો ભગવાનના આશીર્વાદ મળે એ પ્રકારની અનુભૂતિ થાય। એટલું જ નહીં, આ મંદિરનું નિર્માણ એ પ્રકારે કરવામાં આવ્યું છે કે 2,500 વર્ષ સુધી ભૂકંપ આવે, વાવાઝોડું આવે, પૂર આવે કે કોઈ પણ કૃત્રિમ કે કુદરતી આપદા આવે, આપણા ભગવાન શ્રીરામના મંદિરમાં એક નાની અમથી દરાર પણ નહીં પડે। એનો મતલબ એ થયો કે આપણે તમામ લોકો જે 500 વર્ષથી જેની સનાતન સંસ્કૃતિ રાહ જોઈ રહી હતી એ ઘડી હવે આવી રહી છે। કેવી રીતે બદલાય છે શકલ સુરત અયોધ્યાની એ ચર્ચા કરીશું, પરંતુ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આજે શું કહ્યું એ સાંભળી લઈએ। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। એમાં કોઈ બેમત ન હોઈ શકે ને કોઈ આશંકા ન હોઈ શકે કે આખા હિન્દુસ્તાનની અંદર આજ સુધી ન મનાવાઈ હોય એવી દિવ્ય અને ભવ્ય દિવાળીએ 22 તારીખે જોવા મળશે, 22મી રાત્રે જોવા મળશે અને ભગવાન શ્રીરામનો નારો બ્રહ્માંડ સુધી ગુંજે, સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં ગુંજતો જોવા મળશે। આ મુદ્દે ચર્ચા કરવા અભિષેક ઉપાધ્યાય મારા વરિષ્ઠ સહયોગી છે, વિનોદ બંસલજી રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા છે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના, નિપુણભાઈ ભટ્ટ નેતા છે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના। વિનોદભાઈ અને બંસલ સાહેબ સાથે વાત કરીએ પહેલાં अभिषेक સાથે વાત કરીએ। अभिषेक, आप तो उत्तर प्रदेश और खास करके अयोध्या में लंबे अरसे से आते जाते रहे हैं, वहाँ रिपोर्टिंग भी किया है। पिछले 2-3 साल में किस प्रकार से माहौल बदला है और किस प्रकार से
भव्यता और दिव्यता की अनुभूति अयोध्या में पहुंचकर होती है। रौनक भाई देखिए, पहले मैं आपको अयोध्या का दर्शन करा दूं। अभी हम धर्म पथ पर हैं अयोध्या के, और इसी धर्म पथ से प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हुआ था। ये लता मंगेशकर चौक जो आप देख रहे हैं, और जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें उस बदलाव की साक्षी हैं। पिछले 2-2.5 सालों में अयोध्या, जिसे कहते हैं टर्न अराउंड होना, जिसे कहते हैं पूरा 360 डिग्री का परिवर्तन होना, वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और ये आप जो यहाँ से देख पा रहे हैं, ये जो श्रृंखला जारी है, ये धर्म पथ की श्रृंखला, और यहीं से निकलता है भक्ति पथ, और उसके आगे जो है राम पथ है। ये सारे जो पथ हैं, ये बता रहे हैं कि अयोध्या का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये बजरंगबली को यहां पर आप देख रहे हैं। यूं समझिए आप कि एक नई अयोध्या बसा दी गई है इन पिछले 2-2.5 सालों के भीतर। आज की तारीख में जो अयोध्या है, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ का जो अयोध्या धाम स्टेशन है उसका कायाकल्प हो चुका है। रौनक भाई, ये जो अयोध्या है, ये 5 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा के लिए ये शास्त्रों जो हमारा जो युगकालीन इतिहास रहा है, उस समय से ये प्रसिद्ध रही है। सनातन परंपरा का इतिहास है। ये सारे परिक्रमा मार्ग आप सोचिए, 4 लेन के परिक्रमा मार्ग यहां बनाए जा रहे हैं। जो सनातन परंपरा है उसको सुविकसित किया जा रहा है। कनेक्टिविटी आप देखिए, यहां जो टूरिस्ट जो आते हैं उनके रहने की जगहें देखिए, ये सब चीजें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि अब जो होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हो जाएगी, उसके बाद से 3 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन यहां पर आएंगे। ये एक अनुमान है उनके आने के लिए, यहां ठहरने के लिए। ये जो चौड़ी सड़कें आपको दिखाई पड़ रही हैं आने जाने के लिए, ये जो कार्य अभी भी चल रहा है, जो कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजें, वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है, अमृत भारत ट्रेन चलाई गई है, ये सब कुछ ऐसा है जो ऐसा लग रहा है कि इस पुरातन नगरी में एक नई नगरी साकार कर दी गई है। आप यूं समझिए कि आध्यात्मिकता की नींव पर एक बहुत ही खूबसूरत भौतिक शहर की रचना कर दी गई है। तो ये जो समागम है अध्यात्म और भौतिकता का, ये अद्भुत और अनोखा है, जिसके हम अयोध्या में साक्षी बन रहे हैं। अभिषेक भाई देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भी दर्शनार्थी आना चाहे 22 तारीख के बाद आए। तो दर्शनार्थी के तौर पे तो स्वाभाविक तौर पे हमें 22 तारीख वाला मौका मिलने वाला नहीं है, लेकिन आपको वो अवसर प्राप्त हुआ है। आप किस प्रकार से विजुलाइज कर रहे हैं अंतरात्मा से, दिल से, कैसा होगा 22 तारीख का वो दिन? एक ही शब्द है कहने के लिए जो यहां पर मैं महसूस कर पा रहा हूं। एक शब्द है, हिंदी में कहते हैं युगांतकारी। और युगांतकारी मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इतिहास का ऐसा अध्याय होता है जो युगों तक याद रखा जाता है। और रौनक भाई, इस अयोध्या में अभी भी आप जाएंगे, यहाँ चाहे वो राम की पैड़ी हो, चाहे वो दशरथ गद्दी हो, चाहे वो हनुमान गढ़ी हो, चाहे वो सीता का महल हो, ये इस तरह के जो अलग अलग यहाँ पर जो प्राचीन समय को इंगित करते हुए स्थान हैं, वो उनकी मान्यता है कि वो युगों से जीवंत है, आज भी जीवंत है। तो ये 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इस समारोह को भी युगांतकारी बनाने की तैयारी है कि जब भी इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो ये तिथि याद रखी जाएगी। और इस तिथि को जिस तरह की यहाँ भव्यता दिखाई पड़ेगी, जो दिव्यता दिखाई पड़ेगी, और आप सोचिए यहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों से पुरोहित आए हुए हैं, और जितने यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, उनकी जो अलग अलग शाखाएं हैं, उनके जो अलग अलग प्रकल्प हैं, उनका यहाँ पर पाठ चल रहा है। संपूर्ण भारत यहाँ पर उपस्थित है, संपूर्ण भारत का पांडित्य यहाँ पर उपस्थित है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अयोध्या सिर्फ अयोध्या शहर नहीं है, संपूर्ण भारत की शास्त्रीयता को आपस में जोड़ रहा है। और आप सोचिए, वो जो महाजनपदों का इतिहास था, जिस समय में कोसल महाजनपद, जहां पर मैं हूं इस समय, अयोध्या, वो जो उसकी गरिमा हुआ करती थी, ये उसी गरिमा को लौटाने का प्रयास है। तो फिर से मैं कहूंगा 22 तारीख जो है वो एक ऐसी तारीख होने जा रही है जो इतिहास में याद रखी जाएगी। और सारी तैयारियां हैं, ये सारी आवृत्ति जो है, ये उसी उद्देश्य के इर्द गिर्द है। एक आखिरी सवाल और संक्षिप्त में जवाब। अभिषेक भाई, आपने पॉलिटिकल कवरेज भी किया, आपने दुनिया भर के देश में वॉर का कवरेज भी किया, और मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं आप अयोध्या का एक कवरेज भी देख रहे हैं। खुद अभिषेक भाई को निजी तौर पर क्या कुछ अलग दर्शन हुआ?
देखिए, दो बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि ये सत्य है कि अयोध्या बदल गई है, ये सत्य है कि अयोध्या में जो हो रहा है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लेकिन एक और सत्य है कि यहां से जो है उसका एक बहुत ही स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेज है, और वो स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेज बीजेपी की, जिस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को बढ़ाया, उसको चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया, और उसके बाद यहां मंदिर निर्माण हो रहा है। रौनक भाई, आप यूं समझ लीजिए 2024 का जो चुनाव होगा उसमें जो ये 22 तारीख की छवि होगी, ये एक निर्णायक फैक्टर होगी। तो ये जो यहाँ की तस्वीरें हैं, ये 2024 के चुनाव का क्लाइमेक्स तक जाएंगी, ये भी मैं यहाँ रह करके देख पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेकભાઈ ખેર। આજ મુદ્દે વાત કરી લઈએ નિપુણભાઈ સાથે। નિપુણભાઈ ભટ્ટ, નિપુણભાઈ, વીએચપીનું એક આંદોલન હતું, કદાચ આપની ઉંમર પણ નાની હશે કારણ કે હું પણ એ દિવસોમાં નાનો હતો। હવે જ્યારે 22 તારીખ નજીક આવી રહી છે ને તમે જે દિલ દિમાગમાં કલ્પના કરી હશે એના કરતાં પણ કદાચ વધુ ભવ્ય અને દિવ્ય મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, એક સનાતની તરીકે કેટલું ગર્વ? જી, આપે જે કહ્યું કે અત્યારે એક ચોપાઈ છે, સકલ પદાર્થ હૈ જગમાઈ, ભાગ્ય બિના નર પાવત નાહી। અનેક એવા મહાનુભાવોના આશીર્વાદ કે આ ક્ષણ, આ રામ જન્મભૂમિ, આપણે કહેતા હતા રામલલા હમ આએંગે, મંદિર ભવ્ય બનાએંગે, અને એ મંદિર ભવ્ય બનવા જઈ રહ્યું છે। મંદિરની અંદર રામલલાની પ્રતિષ્ઠા થઈ, મંદિર બની ગયું, અને મંદિરની અંદર 22 તારીખે રામલલાની પ્રતિષ્ઠા થવા જઈ રહી છે। અને એ ક્ષણ એટલે આપણે આમ એની કલ્પના કરતાં પણ આપણા એક રોમ ઊભા થઈ જાય કે આ દ્રશ્ય આપણા અનેક પૂર્વજોએ આની માટે બલિદાન આપ્યા, અને આ ક્ષણ આપણને આ નિહાળવા મળશે। સદેહે સ આંખે આપણે આ ક્ષણ જોઈ શકીશું કે મંદિરની અંદર, ભવ્ય મંદિરની અંદર રામલલા બિરાજમાન થશે। ખાસ કરીને વીએચપીના જે કાર્યકર્તાઓ છે, જે જૂની પેઢીના પણ લોકો છે, એ લોકો કેવી અનુભૂતિ કરી રહ્યા છે? એકદમ અત્યારે આપણે અક્ષત પૂજનનો કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે કે 1 થી 15 તારીખ સુધીમાં આપણે ઘેર ઘેર આમંત્રણ આપવા જવાનું છે। તો એ જે અયોધ્યાથી કુંભ આવ્યો એનું પૂજન કરવા અમે અલગ અલગ જગ્યાએ પૂજન કરાવીએ છીએ। તો એની અંદર હજારો જે રામ ભક્તો આવે છે પૂજન કરવા, તો એની અંદર એક અનેરો આનંદ, અનેરો ઉત્સાહ, અનેરી જેમ કહેવાય કે એક કુદરતી એક આવી ગઈ છે એનર્જી, કે એવા ઉત્સાહથી, એવા આનંદથી આ રામ ભક્તો એ પૂજન કરી રહ્યા છે। અને જેને મળીએ કે જેણે વર્ષો પહેલાં આ અયોધ્યામાં આંદોલનની અંદર કામ કર્યું, અયોધ્યાની અંદર જે રામ મંદિર માટે પોતાનું કંઈ પણ બલિદાન કર્યું, તન મન ધન, એવા અનેક લોકો આપણે જે અત્યારે મળીએ છીએ, તો એકદમ એક એમને મળવાથી પણ એક આપણને એનર્જી થાય કે આપણે આપણી નરી આંખે આ દ્રશ્ય આપણે જોઈ શકીશું। અને એ જે ઘણા હમણાં મળવાનું થયું મારે એ સમય દરમિયાન, તો એ એક માજી હતા જેમની ઉંમર અત્યારે લગભગ 70ની આસપાસ છે। એ કહે છે, ભાઈ હું રોજ અત્યારે પણ શ્રીરામ જયરામ જય જય રામની એક માળા હજુ પણ કરું છું। આ ભાવના, આ સનાતન સંસ્કૃતિમાં રહેનારા રામ ભક્તોની આ ભાવના છે। બિલકુલ। ખેર, બંસલ સાહેબ વીએચપીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા છે, તેમની સાથે પણ મેં વાત કરી છે। बंसल साहब, जय श्री राम। 22 जनवरी कितना बड़ा दिन होगा भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति के लिए? देखिए, इसके वर्णन करना बहुत मुश्किल है। ये प्रश्न आपने जो पूछा है वो बेहद गंभीर और वास्तव में संपूर्ण विश्व पूछ रहा है, लेकिन उसका शब्दों में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है कि कितना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए, 500 वर्षों का संघर्ष और असंख्य लोगों का बलिदान, हजारों लोग जो जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और इतने संघर्ष के बाद, इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद में ये दिन आ रहा है, तो मुझे लगता है दीपावली की बजाय ये महादीपावली होगी। वास्तव में 14 वर्ष बाद जब राम जी लौटे थे, तब संपूर्ण अयोध्या ने दिवाली मनाई थी। अब 500 वर्ष बाद जब राम जी पुनः अपने गर्भगृह में आ रहे हैं, तो उस समय संपूर्ण विश्व इसमें दिवाली मनाएगा, और दिवाली नहीं, महादिवाली मनाएगा। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती सर। अकल्पनीय। सर, कभी भी आपने सोचा था कि एक दिन अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन उनकी जन्मभूमि में कर पाऊंगा? देखिए, संघर्ष तो किया था जी रौनक भाई हमने, और सतत संघर्ष किया।
अनेक बार हम हारे और अनेक बार जीते, लेकिन वास्तव में अगर हिंदू समाज की बात करो तो उसने कभी न तो क्लेम छोड़ा और न ही ये कल्पना करी कि वास्तव में ये दिन जो है इतनी जल्दी आ जाएगा। ये दिन आएगा, ये तो हम मन में धारण करके चल रहे थे, क्योंकि राम जी हमारे साथ थे, सत्य और सनातन हमारे साथ था, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा और इतनी भव्यता दिव्यता के साथ आएगा, ऐसी वास्तव में कल्पना नहीं थी हमारी। सर, क्योंकि शास्त्रों में लिखा था भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उसी जगह पे हुआ था, उसके ऊपर कानूनी मुहर लगी और उसके बाद मंदिर बन रहा है, तो शास्त्रों वाली ही बात कानूनी मुहर लगने के बाद होना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। देखिए, बात यह कि देश का दुर्भाग्य है और विश्व का जो जनमानस है इस बात को देख करके अभी भी प्रश्न चिन्ह लगाने को मजबूर है कि आखिरकार क्या दुनिया के किसी देश में ऐसा हुआ है क्या उसके बहुसंख्यक समुदाय के आराध्य देव को अपने जन्म स्थान की मुक्ति के लिए और इतना बड़ा संघर्ष करना पड़े, 70 वर्ष तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, वो भी उस देश की स्वाधीनता के बाद में, ये कल्पना नहीं थी। क्योंकि रामलला विराजमान स्वयं कोर्ट में लड़ रहे थे और आप देखिए दुर्भाग्य तो तब था जब देश के सुप्रीम कोर्ट में, देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी राम को महायुद्ध करना पड़ा, तब जाके विजयश्री प्राप्त हुई है। खैर, बीते ताए विचार दीजिए, आगे की सुध ले। मैं तो सबको साधुवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ और आगे आने के लिए निमंत्रण भी देता हूँ कि जो लोग भूले भटके कहीं इधर उधर चले भी गए थे वो प्रायश्चित करें और वापस आएं, राम की ओर लौटें, अयोध्या की ओर लौटें। बंसल साहब, इस पूरी बात को एक लाइन में निजी तौर पर आपको व्याख्यायित करनी हो तो आप किस प्रकार से करेंगे? बहुत मुश्किल है ये, आपने बहुत विचित्र और एक कठिन प्रश्न पूछा है मेरे से। मैं कहूंगा कि इस दिव्यता और राम की जो महिमा है वही है जिसने ये सब दिन दिखाए हैं। हमने इतने बार संघर्ष किया, लेकिन सदैव इस संघर्ष के केंद्र में एक रही कि राम जी का काम है, राम जी करवा रहे हैं, राम जी कर रहे हैं। हम तो सिर्फ श्रेय लेने के लिए राम जी ने हमें खड़ा किया हुआ है, गिलहरी की तरह काम करे जा रहे हैं, राम जी ने वो श्रेय दे दिया। और इस सब के लिए सबका धन्यवाद और सबको प्रणाम। और वास्तव में उन वीरों को, उन महात्माओं को, उन संघर्षशाली व्यक्तियों को और उस समाज को जिसने मन वचन कर्म धन सब कुछ दिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। बंसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जय श्री राम। ખેર जय जय श्री राम। एक લાઈનમાં મારે જો વ્યાખ્યાયિત કરવું હોય તો હું સ્પષ્ટ એ રીતે કરીશ કે આપણી આ જનરેશન, આપણી આ પેઢી ખુશ નસીબ છે અને એ નસીબ આપણા પૂર્વજોને ક્યારે હાસિલ નહોતું થયું। આપણા પૂર્વજો ક્યારે પણ સંસ્કૃતિના દેવ, હિન્દુ સંસ્કૃતિના દેવ, સનાતન સંસ્કૃતિના દેવ ભગવાન શ્રીરામના દર્શન અયોધ્યાના મંદિરમાં જઈને નહોતા કરી શક્યા, પરંતુ આપણે ખુશનસીબ છીએ કે આપણે ભગવાન શ્રીરામના દર્શન પણ કરી શકીશું, તેમના આશીર્વાદ પણ લઈ શકીશું, તે પણ ભગવાનની જન્મભૂમિના જન્મસ્થળથી।